بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 1 اپریل ہے، منگل کا دن ہے، اور جس طرح سے امریکہ کی جانب سے یمن کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، اور بھرپور طریقے سے اسرائیل کی حمایت کے اندر یہ حملے ہو رہے ہیں، جس میں اس کے گورنریٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے دارالحکومت کو نشانہ بنانے کی ایفرٹس، اور نہ صرف یہ بلکہ متعدد مقامات کے اوپر حملے بھی جاری ہیں، بلکہ 24 گھنٹوں کے اندر 80 حملے جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے۔ لیکن یہاں پر جو حوثی ہیں ان کی جانب سے ریٹیلیشن جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، وہ بھی جوابی حملے کر رہے ہیں، جس طرح سے آئے روز ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نہ صرف وہ امریکی جو نیوی ہے اس کو نشانے پہ لے رہے ہیں بلکہ اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ وہاں پر حملہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اسرائیل کے اوپر بھی جو ان کے ہائپرسونک میسل ہیں یا پھر جو ذوالفقار میسلز ہیں ان کے ساتھ وہ نشانے پہ لیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جس طرح سے وہ آئے روز اپنی سٹرائکس جاری رکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جب تک جو یمنی حوثی ہیں وہ سرنڈر نہیں کر دیتے، وہ جو سفید پرچم نہیں لہرا دیتے، تب تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو حملہ کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے جو جنگی طیارہ، جو جہاز تھا، جنگی جہاز، اس نے وہ وہاں پر ان کے گورنریٹس معریب کے اندر وہاں پر بھیجا، تو اس کو باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ اس وقت یمنی حوثیوں کی جانب سے نشانے پہ لیا گیا ہے، اور خبریں یہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اس کو مار گرایا گیا ہے۔ کیسے یہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ابھی تک یہ یوں کہہ لیں کہ 16واں یہ نشانے پہ لیا گیا، یہ جو جنگی طیارہ ہے یا پھر جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، کس طرح سے یہ آپریشن لانچ کیا گیا، بڑی اہم سٹوری یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر ایران جو ہے وہ اب آن دا فرنٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، کبھی وہ ڈرونز کے اندر خود کفیل ہو جاتا ہے جس طرح سے گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا، کبھی وہ نئی لیزر ٹیکنالوجی سے لیس میزل جو ہے وہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ آئی سی بی ایم جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اور اس حوالے سے کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس وہ میزل سٹیز ہیں، وہ باقاعدہ طور پر 12,000 کلومیٹر تک نشانہ لگانے کے لیے تیار، اور اتنی رینج میں انہوں نے میزائل تیار کر لیا۔ لیکن اب جناب والا جو 3 ملین لیٹر لے جانے والے جو 2 آئل ٹینکرز ہیں ان کو بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کو انہوں نے تھریٹن کیا، یہ جو جا رہے تھے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی طرف، اور یہ جو انہوں نے کیسے یہ آپریشن کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کیا، اور پھر جو امریکی بیسز ہیں، جو 10 بیسز ہیں جہاں پر ان کے 50,000 فوجی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر نشانے پہ لینے کا اعلان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر ایک بھی حملہ یہاں پر ہوتا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک بھی جو فوجی ہے اور فوجی اڈا وہ محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ شیشے کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ باہر پتھر پھینکیں۔ تو یہ کیسے آپریشن جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا، اور کس طرح سے انہوں نے یہ 2 جو جہاز ہیں ان کو کیپچر کیا، یہ بھی بڑی اہم سٹوری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے نام پر دھبا جو ہے وہ کنٹریز کھل کر سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف جو قطر ہے اور دوسری طرف یو اے ای ہے۔ پہلے تو غداری کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے کی فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن اب باقاعدہ طور پر وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ یونان کے اندر جنگی مشقیں کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ایک الائنس کے طور پر۔ تو کیسے یہ چیزیں کھل کر آیا ہوئی ہیں، تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو یمنی حوثی ہیں ان کو نو ڈاؤٹ وہ اس وقت نشانے کے اوپر ہیں، اور باقاعدہ طور پر امریکہ کی جانب سے حملے بھی کیے جا رہے ہیں، آئے روز حملے ہوتے ہیں، آئے روز ٹارگٹ پہ لیتے ہیں، آئے روز کئی حملوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، لیکن آگے سے وہ جوابی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا عرب ملک ہے، غریب عرب ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یمنی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جناب والا جو یمنی مسلح افواج کی جانب سے معریب گورنری کے اندر جو 16واں امریکی جو طیارہ تھا اس کو نشانے پہ لیا گیا، MQ-9 کو، اور انہوں نے اعلان اس حوالے سے کیا، باقاعدہ طور پر بتایا گیا، جو ان کے جنرل یحییٰ ساری ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ملک کے خلاف امریکی جارحیت کے جواب میں، جس نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں پر متعدد چھاپے مارے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے، زخمی ہوئے، اور شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے فضائی دفاع نے ایک امریکی MQ-9 کو کامیابی سے مار گرایا، اور یہ اس وقت معریب گورنری کی فضائی حدود میں دشمنی کے مشن کو انجام دے رہا تھا، اور ایک مناسب جو مقامی طور پر بنایا گیا میزائل استعمال کیا گیا، اور یہ 16واں جو ہے وہ نشانے پہ لیا گیا جہاز ہے، جو ہمارے فضائی دفاع نے، یہ ڈرون جو اس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ فضائی دفاع نے وعدہ فتح کی جنگ تک جو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی حمایت میں
मुकद्दस जो इन्होंने हमलों के दौरान उन्होंने कामयाबी के साथ मार गिराया। और यमनी मुसल्लह अफवाज इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो बहरे अहमर और अरब में इजरायली जहाज रानी को रोकने के लिए कायम रहेंगी और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेंगी जब तक कि इजराइल के खिलाफ जारहियत न हो जाए। गजा रुक गया और नाकाबंदी भी उठा ली गई, लेकिन वो अल्लाह ताला की मदद से आने वाले दिनों में दुश्मन के तमाम जंगी जहाज़ों के खिलाफ मजीद दिफाई कार्रवाइयां करने से दरेग नहीं करेंगे। ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई। लेकिन इन्हीं को लेकर जिस तरह से ये हमले कर रहे हैं, इनके ऊपर भी इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, जिसको लेकर जो रशियन फिलोसोफर है अलेक्जेंडर डोगन, उसकी जानिब से कहा गया, रशियन फिलोसोफर अलेक्जेंडर डोगन सेड that Yemeni Houthis are the only real Muslims, all the rest are Muslims in the name only. Yemenis fight as lions against huge enemy with no fear or hesitation. It is incredible. ये जो रशियन फिलोसोफर है अलेक्जेंडर डोगन, उसकी जानिब से ये जो है वो कहा गया कि यमनी हूसी जो है वो मुसलमान है, कि मतलब बाकी मुसलमान नहीं है, और ऑल द रेस्ट आर मुस्लिम्स इन द नेम ओनली, मतलब बाकी तमाम सिर्फ नाम नहाद मुसलमान है, क्योंकि ये लड़ रहे हैं और मतलब वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी हेजिटेशन के वो ये लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इजराइल के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो हिजबुल्लाह है वो उनको एक्टिव करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने निशाने पे लिया, वहाँ पर जो बैरूत है वहाँ पे उन्होंने हमले किए, जनूबी बैरूत के अंदर। वहाँ पर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँ, मुझे यकीन है कि इजराइल लेबनान में उस वक्त तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो दोबारा जनूब पर हमला नहीं करते, और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने से बहुत दूर है। इजरायली आबादकार कभी भी हिजबुल्लाह के खात्मे के कोई ठोस सबूत जो है उनके साथ शिमाल में वापस नहीं आएंगे। और इजराइल का यही मतलब है, जब तक वो कहता है कि वो एक वजूदी जंग लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास फौज है, बल्कि एक ऐसी फौज है जिसके इर्द गिर्द एक मुल्क जो है वो बनाया गया, जिसमें बैनुल अक़वामी मुहाजिरीन जो है वो मौजूद हैं। और अगर फौज जो है वो हिल जाती है तो मुहाजिरीन जो है वो मुकम्मल बालादस्ती के बगैर आबाद नहीं हो सकते और ना होंगे। लेकिन इजराइल को जनूबी लेबनान पर हमला करना है, कोई कानून या सौदे नहीं है, सिर्फ इजरायली बालादस्ती का मामला है, और जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि इजराइल को जिंदा रहने के लिए इसे लेबनान और शाम पर भी अपना तसल्लुत जमाना होगा। और जब तक वहां के बाशिंदे इसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे और इसे मुस्तरद करेंगे, तब तक इसे फैलाते रहना होगा। जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, पेशकदमी कर रहे हैं माउंट हरमोन, फिर कुनैत्रा, और फिर आगे बढ़ते हुए दमिश्क के जनूबी इलाकों तक, तो आगे से रेजिस्टेंस वहां पर भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो है वो ईरान ने इजराइल के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस टू जो ऑपरेशन शुरू करने के 6 माह बाद अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है, वो तस्वीर जारी कर दी हैं कि इजराइल के नेवातीम एयरबेस जो है उनको जो 38 वॉरहेड्स हैं उनसे निशाना बनाया गया था, जिसका नुकसान आज भी नजर आता है। और मजीद बना इजराइल ने एक हैंगर को गिराया जिसे मरम्मत से बाहर समझा जाता था। लेकिन IRGC एरोस्पेस जो है उसकी कमांडर हाजी ज़ादा ने कहा कि ईरान के इर्द गिर्द इलाके में अमेरिका के 10 फौजी अड्डे हैं, जिनमें 50,000 इनके फौजी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो शीशे के कमरे के अंदर बैठे, और शीशे के कमरे में बैठे हुए शख्स को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और ईरान की जो IRGC बहरिया है उसने खलीज फारिस में एक ऑपरेशन किया और उन्होंने 3 मिलियन लीटर से ज़ायद जो स्मगल शुदा डीजल है वो ले जाने वाले 2 जो गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो मूविंग टूवर्ड्स द इजराइल, और वहाँ से वो एक जो खलीज फारिस है वहाँ से ये कार्रवाई ऑपरेशन में लाई गई और वहाँ पर इनको रोका गया। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान के IRGC के जो कमांडर हैं नेवी के, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये खबर जारी की, लेकिन क्योंकि ट्रंप की जानिब से ईरान पर धमकी दी गई कि वो बमबारी करने के हवाले से, अब उसके बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत भेजी, और ईरान इलाकाई अमन, इस्तेकाम और सलामती के लिए मजबूती से पुरआज़्म है और इससे तसादम या कशीदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ताहम वो किसी भी फौजी मुहिम जोई के खिलाफ सख्ती से खबरदार करता है, और अमेरिका या फिर इसकी प्रॉक्सी इजरायली हुकूमत की तरफ से किसी भी जारहियत या हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। इसकी खुद मुख्तारी, इलाकाई या कौमी मफाद के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। अभी इसी को लेकर ये चीज़ें तो खुलकर सामने आ रही कि कैसे वो पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दिए बैठे हैं। लेकिन इजराइल के साबिक वज़ीर दिफा जो है एविगडोर लाइबरमैन जो है वो नए शिन बैट चीफ की तकर्री के ऊपर आ गए हैं। स्मोट्रिच का इस्तीफा भी हुआ और फिर फौरी तौर पर इसकी बहाली के लिए एक सेशन मुनक्किद करने के हवाले से खबरें सामने आई, और वो यूं कह लें कि पॉलिशॉक शो के अंदर भी नहीं होगा। लेकिन तलह हकीकत तमाम तहय्युलात को पीछे छोड़ देती है, और ये बिल्कुल वही है जो इजराइल हुकूमत की इंतजामी ने 7 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी और
और मईशत के हवाले से देखा है। लेकिन अभी जो मैंने कहा ना कि इस्लाम के नाम पर दबा, जिस तरह से चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया। टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्टेड दैट इसराइल पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल्स इन ग्रीस with 11 other countries including Qatar and UAE। मतलब जो इस वक्त कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उन्होंने यूनान की मेज़बानी में होने वाली जो कसीरुल कौमी फ़िज़ाई मशक़ें हैं इनियोकोस 2025, उनके अंदर इसराइल और दीगर ममालिक के साथ शमूलियत इख्तियार की है। ये सालाना मशक़ जो 24 मार्च को शुरू हुई और 11 अप्रैल तक जारी रहेगी, और इसमें अमेरिका, फ्रांस, भारत, इटली, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, स्लोवेनिया और स्पेन की शिरकत शामिल है, जबकि साइप्रस जो है वो मुआवन अहलकार फराहम कर रहा है, जबकि स्लोवाकिया और जो बहरीन है उसने मुबस्सरीन भेजे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें खुलकर सामने आ रही। कतर और इसराइल यूनान में साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कतर ने कसीरुल कौमी फ़िज़ाई मशक़ इनियोकोस 2025 में F-15 के साथ जो है वो इसराइल के साथ और कम से कम 10 दीगर ममालिक के साथ जो है वहाँ पर मशक़ें शुरू की, जिसमें यूएई जो है वो मिराज 2009 के साथ उसने हिस्सा लिया। और ये बाकायदा तौर पर कान के मिलिट्री नुमाइंदे इते ब्लूमैंथल की जानिब से बताया गया कि इसराइल हिलियंक एयरफोर्स की वेबसाइट पर शाया होने वाले जो शुरका की मुकम्मल फहरिस्त देखकर हैरान रह गया। खास तौर पर इसकी शमूलियत को और कतर जैसे दीगर अफराद को खुफिया रखने की दरख्वास्त दी गई, और अवामी अपोजिशन के बावजूद कतरी और इसराइली फ़िज़ाइया अब एक ही आसमान पर तरबियत ले रहे हैं और मुश्तरका ब्रीफिंग में शिरकत भी कर रहे हैं और नकली मिशनों के अंदर जो वहां पर ताउन भी कर रहे हैं। और ब्लूमैंथल ने दो टोक अल्फाज में नोट किया कि कतर और इसराइल अब यूनान में एक साथ तरबियत कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि क्या ये वो जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये एक सालिसी का किरदार अदा करने का एक ढोंग जो है वो जो रचाया जा रहा था, क्या उसके ऊपर आप किसी को तारीफ कर सकते हैं? और जो कतर है या फिर यूएई, हमेशा बहुत से हमारे देखने वाले नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है और उससे आप आंखें नहीं मूंद सकते। तो ये उनका जो एक चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो हालात हैं, इब्रानी चैनल 15 की जानिब से बताया गया कि इसराइल के एक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि शाम में तुर्की के फौजी अड्डे के क़याम का इम्कान है, जो इसराइल की सलामती के लिए मुमकिन खतरा है और शाम में इसराइली ऑपरेशन की आज़ादी को मुतासिर करेगा, जिसकी हम सख्ती से मुखालफत करते हैं। और हमने हाल ही में शाम के अंदर T4 अड्डे को एक वाज़ेह पैगाम में निशाना बनाया कि हमारी फ़िज़ाई कार्रवाइयों की आज़ादी की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी दो चीज़ें हैं जो हालात की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त चाइना जो है वो फुल ऑन फायर है और चाइनीज़ की मिलिट्री की जानिब से बाकायदा ताइवान के जो घिराव करते हुए बाकायदा वहाँ पर उन्होंने 19 वॉरशिप्स और 50 जेट्स जो हैं वो उनके साथ वहाँ पर एक बड़े पैमाने के ऊपर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। वहाँ पर फ़िज़ाइया, फिर समंदरी और फिर जो ज़मीनी है, वहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइजेज शुरू किए हैं, जिसमें ताइवान की जानिब से भी बाकायदा अपने वॉरशिप्स को एक्टिवेट करते हुए जो वॉरशिप्स वहाँ पर हुए हैं उनको, उनके साथ जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं और डिफेंस सिस्टम जो है और ट्रैकिंग सिस्टम, उसको बाकायदा तौर पर चाइना की मूवमेंट के लिए और इनको रद्दमल देने के लिए बाकायदा तौर पर एक्टिवेट भी कर दिया। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी जानिब जो यूरोप है, यूरोप जो है उसकी जानिब से भी बाकायदा ये एक ताइवान का नया मुहाज यहाँ पर भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूरोप जो है, यूरोपियन कमीशन की जानिब से प्लान किया जा रहा है कि वो यूएस के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने जा रहे हैं, और जो उन्होंने टैरिफ उनके स्टील के ऊपर और फिर एल्यूमिनियम के ऊपर लगाया, इसको लेकर बाकायदा बताया गया कि वो इस वक्त टैरिफ जो लगाया गया उसके हवाले से जो अमरीकी अशिया हैं उनके ऊपर तकरीबन $28 बिलियन का जो टैरिफ है वो आयद करने जा रहे हैं। तो ये अमेरिका और जो यूरोप है वो इस वक्त भरपूर तरीके से आमने सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।